So now student, we have discussed the respiratory system. Now we are discussing the another organ system, which is circulatory system. Circulatory system. Circulatory system you can simply learn as it is the system of circulation or transportation. बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है डिफरेंट मटेरियल्स की, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो गैसेस की हो, फूड की हो, न्यूट्रिएंट्स की हो, वेस्ट मटेरियल की हो, हार्मोन्स की हो, एनर्जी की हो, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन विद इन योर बॉडी हो रही है वो कौन सा सिस्टम परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम. सो यू कैन से द सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन. सर्किल वर्ड क्या आ रहा है? सर्किल मतलब नेवर एंड्स. इट स्टार्ट्स एंड एंड्स एंड चलता रहता है कंटिन्यूसली, ये साइकिल चलती रहती है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम की मेन 3 कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला है हार्ट, नेक्स्ट वन इज ब्लड वेसल्स एंड द थर्ड इज ब्लड. हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड. सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन आखिर इस सिस्टम में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल है या जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है? द ब्लड, बिकॉज ब्लड इज लिक्विड और फ्लूइड इन नेचर, तो इट ट्रांसपोर्ट ऑल द थिंग्स इजीली. हार्ट क्या है? pumping organ. It's a pumping organ. Now we are going to discuss all 3 of these in detail. The main organ of circulatory system. The main organ of circulatory system is the heart. First of all, you have to know about the position of heart. Where is heart located? The heart is present in the chest region and near the left side. ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो आपका हार्ट मौजूद होता है एंड इट्स साइज इज़ अबाउट द मैन फिस्ट. मैन की जितनी भी मुट्ठी का साइज़ होता है इस साइज़ के मुताबिक जो है वो आपके हार्ट का साइज़ होता है. बेसिकली हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. मस्कुलर ऑर्गन, इट कंटिन्यूसली पम्प्स, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है, इसके अंदर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है जिसकी वजह से ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सप्लाई कंटिन्यूसली होता रहता है. ठीक है, उसके बाद द लेयर विच प्रोटेक्ट द हार्ट, ठीक है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. Basically, the heart is divided into 2 equal parts. The heart is divided into 2 equal parts, left side and right side, and each part further divided into 2 parts. Each part further divided into 2 parts, the upper part and the lower part. Upper part is called as auricle or atrium. The lower part is called as ventricle. You can see here the lower part. Lower part is ventricle. The upper part is auricle और atrium. ठीक है, इसको atrium भी कहा जाता है. ठीक है, and the next one, next part मैंने क्या कहा आपको? You can just 1 minute, wait for 1 minute.
ठीक है, हार्ट हैज़ मेनली इट्स अ कॉनिकल शेप मस्कुलर ऑर्गन, द लेयर विच प्रोटेक्ट द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम. इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 equal parts, left part and the right part, and each part further divided into 2 parts, upper part and lower part. Upper part is called as auricle or atrium and the lower part is called as ventricle. फिर further upper part की जब हम बात करेंगे तो right auricle, left auricle and the lower part is ventricle, left ventricle and right ventricle. Now ये 4 chambers हैं. अगर आपसे कोई सवाल किया जाए that how many chambers are present in the human heart, it has 4 chambers. ठीक है. Now the working of heart. Now student, we are discussing how the circulatory system works. Here you can see the pictures. As I told you, the different chambers of heart, that heart has 4 different chambers: right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. The right upper part is called as auricle, left auricle. Lower part is ventricle, right ventricle, left ventricle. Now the left side, गलत हो गया, नहीं सही है हाँ, राइट साइड में ठीक है. द राइट ठीक है. Now the right side receives deoxygenated blood. Right side receives deoxygenated blood. Now what is deoxygenated blood? Deoxygenated blood means the blood which contain carbon dioxide gas. The blood which contain carbon dioxide gas. Now the deoxygenated blood, जाहिर सी बात है वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो कहाँ से आएगी? ऑल ओवर द बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है. तो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड deoxygenated blood comes on the right side. It comes through the anterior vena cava and posterior vena cava. Anterior vena cava and posterior vena cava are the main veins. ठीक है. Anterior vena cava brings the blood from upper part of the body and the posterior vena cava brings the blood, deoxygenated blood, from the lower part of the body. Anterior vena cava and posterior vena cava 2 मेन वेन्स हैं और ये आपकी तमाम बॉडी से, एंटीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट से और पोस्टीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी पार्ट से तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे मैं सिर्फ पहले समझा दूँ, उसके बाद वर्किंग समझाऊंगी. ठीक है. एंड द लेफ्ट साइड रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. It receives the oxygenated blood. And what is oxygenated blood? The blood which contain oxygen, healthy blood. ठीक है. फ्रेश ब्लड जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है. ठीक है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कौन से पार्ट में आता है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. नाउ अब होता क्या है कि जैसे ही हार्ट के अंदर मुसलसल पंपिंग सिस्टम मौजूद है, इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थ्रू एंटीरियर वेना कैवा एंड पोस्टीरियर वेना कैवा. द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स एंटर्स इनटू द राइट ऑरिकल, अपर पार्ट के अंदर आया. जैसे ही हार्ट ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, द ब्लड ट्रांसफर इनटू द राइट वेंट्रिकल. अब राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया. राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन इस ब्लड को कन्वर्ट होना है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है और ऑक्सीजन को इनहेल करना है, ऑक्सीजन मिक्स करना है. तो ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा. लंग्स में कौन लेके जाएगा? ये दैट इज पल्मोनरी आर्टरी.
पल्मोनरी का वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है इट मीन्स लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर चला गया, वहाँ क्या हुआ, एल्वुलाई हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और उस ब्लड के अंदर क्या मिक्स होगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट्स इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये प्रोसेस कहाँ होगा, लंग्स के अंदर होगा। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल और कौन लेके आएगा, ये देखें, ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लेके आएंगे। जैसे ही हार्ट पंप होगा, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मेन एओर्टा, ठीक है, ये मेन एओर्टा है, इसके ज़रिए तमाम बॉडी के अंदर, होल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। Is it okay? The deoxygenated blood enters through the anterior vena cava and posterior vena cava. Right auricle receives deoxygenated blood. On contraction, the deoxygenated blood enters into the right ventricle. Then this deoxygenated blood enters into the lungs through pulmonary artery. In the lungs, deoxygenated blood converts into the oxygenated blood. That oxygenated blood is carried by the pulmonary vein. Then pulmonary vein enters into the left auricle, and the oxygenated blood then from left auricle enters into the left ventricle, and from the left ventricle it enters into the aorta. Aorta are the main artery which transfer the oxygenated blood throughout the body.